आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर में कांग्रेस पार्टी की आयोजित हुई प्रेस मीट, ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने की जिलाधिकारियों के साथ बैठक, कुपोषण और पशु टीकाकरण पर जिलों को सराहा। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पोस्टल बैलेट से उग्रवादी भी डाल सकेंगे वोट। अखिलेश यादव ने किया वादा, सपा की सरकार बनी तो आईटी क्षेत्र में 22 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। अब समाचार विस्तार से। आज बिदर के अक्का महादेवी कॉलेज में जिला कांग्रेस की प्रेस मीट आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस नेता ईश्वर खंडरे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, हमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल, अरविंद अरली एमएलसी और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर ईश्वर खंडरे और हमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल ने केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा और जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान पर भड़कते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की आलोचना की और आरोप प्रत्यारोप लगाए। केपी न्यूज़ के कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धिಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದಂತದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಜನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಶಾಸಕರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು, 2 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರು ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ 5 ಜನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು। ಮಂಡಳಿಯು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಭೆ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು। ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಳ ದಿನಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸತಕ್ಕದ್ದು। ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆನೇ ಇದೆ। ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಇವರು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। 10 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ರವರು ಸುಮಾರು 3-4 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ। ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 3-4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದೆ ನಾನು। ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 2300 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಟನ್, ಇಲ್ಲ 2300 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ರವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು DC ಚೇಂಬರ್ದಲ್ಲಿ। ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು। ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ನಾನಂತೂ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು। 2400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? 1 ಪೈಸಾ ಆದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರ? ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ರವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ। ನನಗೇನು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ನಾ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ। ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ 1 ನಯ ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತೇನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬರೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ। ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ? ಇವರು
ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 1,800 ಕೋಟಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. कर्नाटक दलित संघर्ष समिति की ओर से 26 जनवरी को देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को शाम 4:30 बजे संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में आज बिदर के अंबेडकर सर्कल पर कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के अधिकारियों और सदस्यों ने इस आंदोलन के पोस्टर का क्रियान्वयन किया। इस अवसर पर समिति के अधिकारियों ने बताया कि 26 जनवरी को आयोजित किया जाने वाला ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें बिदर जिले के सभी नागरिकों को भाग लेकर इसे कामयाब बनाने की अपील की गई है। साथ ही इस आंदोलन को आयोजित करने के संबंध में कहा कि देश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से वो दलितों, माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड का कई तरह से विरोध कर रही है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये सरकार उस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के राजू कड़ियाल और उमेश कुमार सुरडीकर ने केपी न्यूज़ के कैमरामैन साबिर खान को इस संबंध में बताया। दलित संघर्ष समिति वतीಯಿಂದ जो 26 तारीख के दिन संविधान बचाओ देश बचाओ बोलकर जो कार्यक्रम आयोजित करे हैं, कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के ओर से ये एक बड़ा आंदोलन है। ये आंदोलन को बीदर समस्त नागरिक लोग ये कार्यक्रम में आके भाग लेके यशस्वी करना बोलकर इस समय में मैं अपील करता हूँ। इस देश में भाजपा सरकार आने के बाद दलित और माइनॉरिटी बैकवर्ड लोगों को बहुत तरीके से विरोध काम कर रहा है। ये लोगों को जीने के लिए बाबा साहब ने अम्बेडकर ने संविधान दिए, वो संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे एक बड़ा प्रोग्राम बन के लोगों के इसमें जागृत करने के लिए कर्नाटक दलित संघर्ष समिति जो आयोजित कर रहे हैं कार्यक्रम, ये कार्यक्रम को बीदर के सभी नागरिकों को आके ये कार्यक्रम यशस्वी करना बोलकर इस समय में मैं अपील करता हूँ। ತಾರೀಖರಂದು 73ನೇಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಬಂದ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಜಾತಿಯವರ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದುರಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ। ಆದ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾಲಿದೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಆ ಷಡ್ಯಂತರವನ್ನು 3% ವರ್ಗದ ಜನ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಗಾಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು 26ನೇ ಜನವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೂ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿದಾಗ NRC CA ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಿತ್ತು।
ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾಳ ಗಂಡಾಂತರ ವಿಷಯನ ಬಿಲ್ಲು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋರಳಿಕರ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. पीएम मोदी ने विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शनिवार को कहा कि विकास के मामले में पिछड़े जिले पहले देश की प्रगति के आंकड़ों को भी नीचे कर देते थे, लेकिन पिछले 7 साल में जब से इन पर विशेष ध्यान दिया गया है, उन्हें आकांक्षी जिलों के रूप में पेश किया गया है। तो यही ज़िले आज गतिरोध की बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, आज़ादी के 75 साल की लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई ज़िले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन ज़िलों पर पिछड़े ज़िलों का तमगा लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों ज़िले प्रगति करते रहे तो दूसरी तरफ से पिछड़े ज़िले और पीछे होते चले गए। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये ज़िले नीचे कर देते थे और इसकी वजह से जो ज़िला अच्छा भी कर रहे थे उनमें भी निराश आती है। मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने बड़ा फैसला किया है। इस बार के चुनाव में उग्रवादी भी वोटिंग कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए उन्हें वोटिंग की इजाज़त दी गई है। हालांकि आयोग ने इसके लिए कई तरह की शर्तें भी रखी हैं। सिर्फ ऐसे उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार दिया गया है जिन्होंने सरकार से शांति समझौते के लिए हामी भरी है। बता दें कि मणिपुर में 27 फरवरी को वोटिंग है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की। सिर्फ ऐसे लोगों को मतदान में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम वोटर लिस्ट में सूचीबद्ध हैं और जो फिलहाल अलग अलग कैंप में रह रहे हैं। सरकार ऐसे संगठन से जुड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। कई अंडरग्राउंड गुटों ने भी सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस की राज्य इकाई में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान का अभी तक यही कहना है कि पार्टी 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को होने वाला चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, लेकिन इसकी राज्य इकाई के कई नेताओं की मांग है कि इस मामले पर स्थिति को शीघ्र अतिशीघ्र स्पष्ट किया जाना चाहिए। अगले महीने के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं देने से नाराज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने शनिवार को कहा कि वो सत्तारूढ़ पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। 65 वर्षीय नेता ने कहा कि वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं और आज शाम तक अपना त्यागपत्र औपचारिक रूप से सौंप देंगे। पार्सेकर फिलहाल आगामी गोवा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं और पार्टी को कोर समिति के भी सदस्य हैं। भाजपा ने मांद्रेम विधानसभा सीट के लिए मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को नामांकित किया है। इस सीट का पार्सेकर ने 2002 से 2017 के बीच प्रतिनिधित्व किया था। सोपते ने 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पार्सेकर को हराया था, लेकिन 2019 में 9 अन्य नेताओं के साथ सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को वादा किया कि पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के 22 लाख युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने ये घोषणा यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की। इस अवसर पर बरेली के पूर्व सांसद परवीन सिंह एरन और उनकी पत्नी वो इस चुनाव में कांग्रेस में उम्मीदवार सुप्रिया एरन सपा में शामिल हुई। अखिलेश ने बरेली की पूर्व महापौर सुप्रिया को बरेली कैंट से सपा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा संडीला से पूर्व विधायक महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह भी पार्टी में शामिल हुई हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक हर रोज लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता मास्क नहीं लगा रहे हैं। ताज़ा मामला राज्य की दर्जा प्राप्त मंत्री इमरती देवी का है, जिन्हें मास्क पहना हुआ नहीं देखकर जब मास्क दिया गया तो वो फेंक कर चलती बनी। इमरती देवी के मास्क फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दतिया में शुक्रवार को बम महादेव चौक पर बिना मास्क लगाए लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मास्क बांट रहे थे। तभी वहां इमरती देवी अपनी गाड़ी में पहुंची। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने उन्हें भी मास्क दिया। इमरती देवी ने उसे लिया भी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी उन्होंने फौरन उस मास्क को फेंक दिया। उनकी ये हरकत किसी ने कैमरे में कैद कर ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम घोषणा की है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो IT सेक्टर में आने वाले समय में 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं समाजवादी नेता रामगोपाल यादव ने घोषणा की कि अखिलेश यादव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज शनिवार 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि दूसरे चरण में पहली लिस्ट से भी ज्यादा मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। मायावती ने जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 23 मुस्लिम है। मायावती ने इस मौके पर एक नया चुनावी नारा भी दिया है। उन्होंने कहा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है। मायावती ने इस अवसर पर पार्टी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो कोरोना नियमों का पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरें। पाकिस्तान ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले साल एक आतंकवादी हमले में हताहत हुए एक बड़ी पनबिजली परियोजना में कार्यरत 36 चीनी नागरिकों को मुआवजे के तौर पर $1.16 करोड़ देने की घोषणा की है। मुआवजे की राशि के संबंध में मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति ने शुक्रवार को फैसला लिया। पाक वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार ECC ने विचार विमर्श करने और चीन के साथ हमारे संबंधों की गहराई को ध्यान में रखकर सद्भावना के तहत कदम उठाते हुए सरकारी स्तर पर $1.16 करोड़ के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में कांग्रेस पार्टी की आयोजित हुई प्रेस मीट, ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने की जिलाधिकारियों के साथ बैठक, कुपोषण और पशु टीकाकरण पर जिलों को सराहा। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पोस्टल बैलेट से उग्रवादी भी डाल सकेंगे वोट। अखिलेश यादव ने किया वादा, सपा की सरकार बनी तो IT क्षेत्र में 22 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। KP न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।